चलो सॉकेट से स्टार्ट करते हैं. The upper bigger hole in the socket is for earth connection, while the hole on the right side is for the connection to the live wire, and the hole on the left side is for the connection to the neutral wire. क्योंकि जो हम लोग सॉकेट की बात करें तो जो हमारा सॉकेट था, लेट्स से ये हमारा सॉकेट है, ठीक है. इस सॉकेट में जो टॉप वाला पिन है वो अर्थ का है. एक राइट साइड वाला पिन और लेफ्ट साइड वाला पिन हम लोग बात करें. लेफ्ट साइड वाला लाइव था, राइट साइड वाला न्यूट्रल था, ये अर्थ था. तो जब इस सॉकेट को लगाएंगे देखो अर्थ अर्थ में जाना चाहिए, और इधर वाला इस सॉकेट का जो खुद का लेफ्ट वाला है वो इसके लेफ्ट वाले में जाएगा, है ना. ये वाला जो है ये न्यूट्रल न्यूट्रल में जाएगा और लाइव लाइव में जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन होता है. तो यहाँ पे जो सॉकेट भी बनाते हैं उसमें भी लाइव राइट में होना चाहिए, न्यूट्रल लेफ्ट में होना चाहिए और अर्थ ऊपर होना चाहिए. बट अपने घर में तुम देखोगे जितने कनेक्शन है सब उल्टे पुल्टे किए होंगे, कहीं पे भी इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं ये लोग इंडिया में. बेसिकली क्या है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, कोई भी उठ के इलेक्ट्रिशियन बन जा रहा है. तो उस वजह से ये कहीं पे भी फॉलो नहीं किया हुआ है हम लोग. मतलब मैंने तो, मेरे घर में तो एटलीस्ट नहीं है कहीं पे भी फॉलो किया हुआ. तो इट इज एक्चुअली डेंजरस. यू शुड बी यूजिंग ए टेस्टर ऑलवेज टू टेस्ट कि कौन सा लाइव है कौन सा न्यूट्रल है, और अकॉर्डिंगली आपको जजमेंट लेना होगा. ऐसा नहीं कि ये लाइव है ये न्यूट्रल अपने मन से सोच लिया और तुमने इसको टच कर लिया कि न्यूट्रल टच करने से कुछ नहीं होगा, बट इट मे बी फेटल. So upper bigger hole in the socket is for earth connection, while the hole on the right side is for connection to the live wire. तो ये हमारा लाइव वायर हो गया, ये न्यूट्रल कनेक्शन हो गया और ये अर्थ का कनेक्शन हो गया. ओके, so left side is for connection to the neutral wire of the electric supply. Now safety precaution for plug in socket. While inserting the plug into the socket, the following two main precautions are taken. First, the hand must be completely dry. मतलब there should be no water in your hands while you are applying a plug inside the socket, when you are pushing a plug inside the socket. तो इस चीज का खासा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है तो योर हैंड शुड बी completely dry while applying the while putting the plug inside a socket. Second, the plug pin should fit in the socket tightly. अगर ढीला रहेगा ना तो बार बार स्पार्किंग होगा, और स्पार्किंग होने की वजह से आग लगने का खतरा हो सकता है. सो मतलब any loose connection will give rise to sparking and burning of either the socket or the plug. तो आप देखोगे कहीं कहीं पे ना जो सॉकेट है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका होता है थोड़े दिन के यूज के बाद. वाई वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने जो प्लग यूज किया है वो उसमें टाइटली फिटेड नहीं था, और उसके वजह से रेगुलर वो स्पार्क के वजह से वो धीरे धीरे वो ब्लैक हो गया, बर्न आउट कर गया. इज इट क्लियर? Now color coding of wires in a cable. So each electric appliance is provided with a 3-core flexible cable. ठीक है, the insulation on the 3 wires is of different color: red or brown, black or light blue, and green. So old convention of colors of insulation: red is for live, black is for neutral, and green is for earth. So ये हमारा color coding है. So red was for live, black for neutral, and green for earth. But नए वाले new international convention says brown for live wire, light blue of neutral, and green or yellow for earth. So light blue is used for neutral, brown is used for live, and green or yellow is used for earth connection. This is the new international convention. Now high tension wires. So each wire in cable is capable to withstand up to a certain limit of current. If current exceeds this limit due to short circuiting or high voltage fluctuation, the wire may burn due to excessive heating and it may cause a fire. For high voltage and heavy current,
a special wire called the high tension wire is used. The high tension wire has a low resistance and large surface area. The resistance is kept low so as to allow a heavy current to pass through it. So ये high tension wire हो गया. Now safety precautions while using the electricity. So while using the electricity, precautions are taken to avoid the two major dangers. First is the fire and second is an electric shock. तो बेसिकली हम लोग को प्रिकॉशन किन चीजों के अगेंस्ट लेना होगा कि इलेक्ट्रिक फायर नहीं कैच कर ले, और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक शॉक से हम लोग बच सके. ये दोनों प्रिकॉशंस इसलिए लेंगे कि इन दोनों चीज से हम बच सके. तो अ फायर इज कॉल्ड व्हेन देयर इज ओवर हीटिंग ऑफ द लाइन वायर. ठीक है, तो जब भी ओवर हीटिंग होगा तो फायर इज बीइंग कॉज्ड ड्यू टू ओवर हीटिंग. So a fire is caused when there is overheating of line wires for various reasons such as break of insulation or short circuiting, etc. Second, an electric shock may be caused from an appliance due to poor insulation of wires. है ना? तो जो इलेक्ट्रिक शॉक है, तो अप्लायंस से हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक कब लग सकता है? पहला तो अगर या तो पुअर इंसुलेशन ऑफ वायर्स है, जो वायर्स कनेक्ट किया हुआ वहां पे इंसुलेशन प्रॉपरली नहीं है, या फिर पुराने होने की वजह से इंसुलेशन ब्रेक कर गया है, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. दूसरा, टचिंग द अप्लायंस विथ वेट हैंड, है ना, अगर गलती से हमने वेट हैंड से टच कर लिया और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, देन यू मे गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक. तीसरा, नो अर्थिंग ऑफ अप्लायंस, है ना, अप्लायंस में अर्थिंग नहीं किया हुआ है तो भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. चौथा, नो फ्यूज प्रोवाइडेड विद द अप्लायंस, कि भाई एक्स्ट्रा एक्सेस करंट आया तो फ्यूज ब्लो कर जाना चाहिए और अप्लायंस जो है वर्क करना बंद हो जाना चाहिए. बट अगर फ्यूज नहीं लगा हुआ है तो एक्सेस करंट जो आएगा वो फ्लो करेगा और इट मे कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक अगेन. नो लोकल अर्थिंग नहीं किया हुआ है तो भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस है. टू अवॉइड इट 5 प्रिकॉशंस आर टेकन. तो ये जो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए देयर आर 5 प्रिकॉशंस व्हिच नीड्स टू बी टेकन. फर्स्ट इज द इंसुलेशन ऑफ वायर. The insulation of wires must be of good quality and it should be checked from time to time, because with long use the insulation over the wire becomes brittle and it cracks off, leaving the wire naked. So ठीक है. दूसरा है, the appliance should never be operated or touched with wet hands. The hands should always be kept dry. Third, each appliance must have its metallic case earthed. Fourth, each appliance must be provided with a proper fuse in its live wire before the appliance. And fifth, there must be proper local earthing near the kWh meter. So these are the 5 precautions which needs to be taken while using a electrical appliance in house. Clear बच्चों? Yes, sir. Now let's do the examples. तुम लोग को ये असाइनमेंट तो मैंने नहीं दिया है ना, हाउस होल्ड सर्किट का जो असाइनमेंट है, दिया है क्या? सर एक मिनट चेक कर लेता हूँ. नहीं सर, नहीं दिया. ठीक है, आई विल शेयर दिस असाइनमेंट. आपको दिया भी होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब यू कैन कीप इट. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर, so you can do these questions and revise for your preparation. ठीक है. So what I'll do, I'll share this file with you.
पीछे जो भी रिवाइज करा है सबका नोट्स मिलते जा रहा है ना तुमको? कोई छूटा तो नहीं है बीच में? करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था उसका भी दे दिया था ना मैंने नोट्स? यस सर। चेक कर लेना, अगर नहीं दिया होगा तो मुझे याद दिला देना, मैं भेज दूंगा तुम। सो ये तो नोट्स भेज दिया मैंने तुम्हें। लेट अस डू द क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। 2 क्वेश्चंस हैं इसके, ये पहले करें। तो आपका है पहला क्वेश्चन है ये, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 3 किलोवाट is to be operated at mains of 220 volt. Find the current rating of the fuse to be connected with the motor. तो पावर दे रखा है 3 किलोवाट, 3000 वाट हो गया। जस्ट अ सेक बच्चा। हाँ जी बच्चा, सॉरी। So, electric motor of power 3 kilowatt is to be operated at means of 220 volt. So, voltage is 220 volt. Find the current rating of the fuse to be connected with the motor. So, हमें पता है कि voltage into current is equal to power. So, current is equal to power by voltage. 3000 divided by 220 कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 13.6। सो 13.6 एम्पियर हो गया। सो अब कह रहा है कि फ्यूज का क्या रेटिंग होना चाहिए? तो फ्यूज का रेटिंग बेसिकली इससे बड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली इसके बराबर तो होगा नहीं भाई, थोड़ा बहुत सर्ज को बर्दाश्त भी करने की ताकत उसमें होनी चाहिए। तो जस्ट इससे बड़ा जो तुम देखोगे, हम लोगों ने देखा है 2 तरीके का फ्यूज होता है, एक 5 एम्पियर वाला, एक 15 एम्पियर वाला, है ना। घर में जनरली ये दोनों फ्यूज यूज करते हैं। तो ये बिकॉज 13.6 एम्पियर है, तो फ्यूज का जो रेटिंग होता है वो यहाँ पे जो यूज करेंगे 15 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now a house has main fuse of 5 ampere rating. Now 5 bulbs each of 60 watt and 2 tube lights each of 40 watt are used simultaneously. ठीक है? The current drawn from the mains of 220 volt and the number of additional bulbs each of 100 watt which can also be lighted on a festival day. So मेन फ्यूज कितना है? 5 एम्पियर रेटिंग का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जो, अब इससे ज्यादा फ्लो नहीं करना चाहिए मेन में करंट। 5 बल्ब ईच ऑफ 60 वॉट, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा? 5 बल्ब ईच ऑफ 60, 2 ट्यूबलाइट ईच ऑफ 40, so 300 plus 80, so this is equal to 380 watt। ठीक है, so this is the total power, right? P का वैल्यू हो गया 380 वॉट।
The current drawn from the mains I is equal to power up divided by voltage. So 380 divided by 220. So तो ये हो गया हमारा 1.727, 1.73 के अप्रोक्सीमेटली आ गया. तो इतना करंट जो है अभी यूज हो रहा है और 5 एम्पियर तक हो सकता है ना. तो जो करंट बाकी रह गया तुम्हारा, ठीक है. सो एक्सेस करंट अवेलेबल, सो एक्सेस करंट अवेलेबल करेंगे 5 माइनस 1.73, 3.27 एम्पियर हो गया जो एक्सेस करंट जो अवेलेबल है, ठीक है ना. ठीक है. नंबर ऑफ एडिशनल बल्ब्स, नंबर ऑफ एडिशनल बल्ब या एक बल्ब जो है 100 वॉट का एक बल्ब, करंट ड्रॉन बाय ईच बल्ब ऑफ 100 वॉट. तो ये 3 पावर है हमारा, पावर है हमारा 100 वॉट और वोल्टेज है 220. 100 बाय 220 P बाय V कर लेंगे. So 100 डिवाइडेड बाय 220, 0.4545 है. 0.45 एम्पियर इज द करंट used by each bulb. So number of bulbs निकालना होगा. टोटल करंट, एक्सेस करंट 3.27 एम्पियर है और एक बल्ब में 0.45 लग रहा है. तो 7.194, तो अप्रोक्सीमेटली 7.2 है. तो बल्ब 7 बल्ब मोर बल्ब्स कैन बी लाइटेड. तो 7 more bulbs can be lighted on a festival day. अगर एक्स्ट्रा बल्ब हम लोग को जगाना है तो इतने सारे और बल्ब जला सकते हैं. क्लियर बच्चों? लिख लिया सभी ने? अब आप लोग जो है, आप लोगों ने क्या एक्सरसाइज 9A किया था? सर आई थिंक 9A तो सिलेबस से हट गया था ना. Yes, sir. नहीं, पूरा 9A तो नहीं हटा है. जो पोर्शन है सिलेबस में, सर वो लास्ट के 2-3 पैराग्राफ्स हैं वहाँ के. बट हमने स्कूल में तो 9B से शुरू करा था सीधा. अच्छा, यस सर, स्कूल में हमने डायरेक्टली 9B से शुरू किया था. ट्रांसमिशन ऑफ पावर वाला पोर्शन है. पावर डिस्ट्रीब्यूशन हट गया है बट ट्रांसमिशन ऑफ पावर वाला पोर्शन है सिलेबस में. देखो देखोगे, अच्छा so main circuit 3 wire live neutral earth with fuse. Main switch and its advantage. तो ये वाला जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए हाउस, मेन सर्किट स्विचेस.
तो ये वाला जो मेन सर्किट है ना, ये मेन सर्किट इसी को बता रहा है। ये जो तुम्हारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू ए हाउस है ना, यही मेन सर्किट में आता है। ये पोर्शन देख रहे हो ना, मेन सर्किट जो लिखा हुआ है तुम्हारा, मेन सर्किट जो लिखा है ना, 3 वायर्स, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ जो आया विथ फ्यूज एंड एमसीबी एंड मेन स्विच एंड इट्स एडवांटेजेस। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, एमसीबी, मेन स्विच, इन सब के जो एडवांटेजेस, ये इसी में है। नहीं सर पता नहीं सर, हमने तो 3 से शुरू करा था स्कूल में। स्कूल में फिर गलत कराया हुआ तुम्हें। 9.1 और 9.2 पढ़ लेना, मत छोड़ना। जो तुम्हारा ए पार्ट है उसमें 9.1 और 9.2 तुम कर लेना। उसके बाद नीड फॉर अर्थिंग, फ्यूज, 3 पिन प्लग, सॉकेट, कन्वेंशनल लोकेशन ऑफ लाइव, this in 3 pin plug and socket, safety precaution, color coding of wire। सर 9.2 भी पढ़ना है? 9.2 भी पढ़ना है। ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि मेन स्विच एंड इट्स एडवांटेजेस। जो मेन स्विच हम लोग लगा रहे हैं ना, मेन स्विच के बारे में बस यही, पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस में ही मेन स्विच का यूज होता है, और तो कहीं मेन स्विच का यूज ही नहीं है। और 9.3 हम छोड़ दें, फिर 3B 9B में आ जाए सीधा। हाँ, सीधे उसके बाद 9B में आ जाओ। ये भी कर लेना, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, ये जेनेरिक चीज है, ये पूछ देंगे लास्ट में जो है ना, एग्जाम्पल्स के जस्ट पहले ये पार्ट में, पेज नंबर 216 जो है। यस सर। ठीक है, तो सर उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे 9A में से। 9A में जो पोर्शन जो है, उस पोर्शन का तो क्वेश्चन तुमको करना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें, देखो ये जो क्वेश्चन 12 है, सेम वही क्वेश्चन, स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मेन स्विच इन हाउस वायरिंग। ये साफ साफ लिख ही रखा है, मेन स्विच एंड इट्स एडवांटेज। क्वेश्चन 12 तो एग्जैक्टली बोला हुआ है। 13 ऑनवर्ड्स तुमको नहीं करना है, 12 तक करना है तुमको। ठीक है जी बच्चों, ओके सर। इसमें भी ये ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? 9.2 नहीं करना है? नहीं, 9.2 मतलब 9.2 करना है, 9.1 और 9.2 करना है, 9.3 नहीं करना है। 9.3 में ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ अप्लायंस इन पैरेलल और सीरीज, ये करना है, बाकी नहीं करना है। मतलब ये रिंग सिस्टम वाला जो पोर्शन है ना, ये बस नहीं करना, बाकी सब तुमको करना चाहिए। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे ज्यादा अच्छा है। जहाँ पे थिन बाउंड्री है, जिसमें आप नहीं कर सकते हो कि ये आएगा या नहीं आएगा, तो जहाँ पे डाउट है उसको पढ़ लो। 2 पेज एक्स्ट्रा पढ़ लेने से क्या होगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम बना पाओगे, बाकी नहीं बना पाएंगे, है ना? यस सर। तो अगली क्लास में हम लोग साउंड स्टार्ट करेंगे, है ना? और साउंड का नोट्स वगैरह देखेंगे। अभी जो तुमको क्वेश्चंस भेजे हैं ना, इसमें क्वेश्चंस वो पोर्शंस के भी होंगे जो सिलेबस से हट गया है, तो तुम उसको छोड़ देना उसमें से। आई डिड नॉट हैव टाइम टू सेपरेट आउट दोस क्वेश्चंस। तुम देख लेना, जो रिंग सिस्टम वगैरह से क्वेश्चन होगा उसको छोड़ देना। ठीक है जी बालकों? यस सर। और सर शायद आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीडीएफ नहीं भेजा है उस ग्रुप पे। नहीं भेजा है ना, तो मैं भेज दूंगा। सर आई थिंक आपने फर्स्ट पार्ट का भेज दिया था, सेकंड पार्ट नहीं आया। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट पार्ट है वो भेजा है, सेकंड पार्ट नहीं भेजा। मैं एक बार चेक कर लूंगा आज रात में और भेज दूंगा तुम। यस सर। यस सर। ठीक है, जिससे पूरा जितना पीछे से हम करते आ रहे हैं उसका नोट्स तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, है ना? तुम्हारा एग्जाम तो फर्स्ट से ही है अभी तक।
तो सेकंड सर आज पिया मैम बोल रही थी कि शायद से हो शायद से ना हो, अभी कंफर्म नहीं है। सर Yes, अभी sir. स्कूल का कंफर्म नहीं है, ऑनलाइन का भी कुछ कंफर्म नहीं। ऑनलाइन ही लेंगे ये लोग, अभी स्कूल कहाँ खोलेंगे, अभी तो ऐसे ही केसेस बढ़ रहे हैं, मेरे सोसाइटी में तो 40-45 केस हो रखा है। यस सर, यहाँ भी तो कह तो रहे हैं कि वही कर देंगे सर, बिकॉज जैसे न्यूज़ आ रही है कि 800 टीचर्स और स्टूडेंट्स पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो यस अभी सर, कंसिडर कर रहे हैं कि ना खोलें। हाँ, सर इनफैक्ट पॉसिबिलिटी एग्जाम्स ही ना हो अभी इस बार, मतलब फाइनल। हाँ, ये फाइनल वाला एग्जाम का पता नहीं। देखो एग्जाम तो ये लोग ऑनलाइन लेंगे ही, क्योंकि इनको अपने आप को जस्टिफाई करना है। वैसे तो लेना कोई मतलब नहीं होता ऑनलाइन एग्जाम का, बच्चे घर में क्वेश्चन पेपर मतलब जो है किताब खोल के लिख रहे होते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। बेसिकली यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली। बट ये लोग इन लोग को अपना जस्टिफिकेशन करना होता है, जिसकी वजह से ये लोग टेस्ट वगैरह